Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 9th December 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about yesterday's incident. We lost one of the best heroes of Indian Army, Mr. General Bipin Rawat. He had the caliber, vision, and heart to CDS. So, कल के इंसिडेंट में ही थ्रू दी हेलीकॉप्टर क्रैश वो बेसिकली नीलगिरी फॉरेस्ट के बीच में ही उनका एरोप्लेन जहाँ वो जाने वाले थे वहाँ से 10 किलोमीटर पीछे ही कहीं क्रैश हुआ. Yesterday, he was going to one of the military service schools for her lecture. He was there as a guest, and during the traveling, वो थी उनकी वाइफ थी और उनके साथ 11 ऑफिसर्स थे, जिसमें से एक जो है जो बचे ही इज़ स्टिल अंडर दी सर्विलेंस, ट्रीटमेंट चल रही हैं. एंड ये इंसिडेंट लगभग कुछ 12:30 बजे 12:25 को हुआ. एंड कंफर्म न्यूज़ जो है इवनिंग में 6 o'clock को दिया गया कि ऐसे ऐसे चीज़ें और ये सिनारियो है फ़िलहाल. सो कहीं ना कहीं अगर जनरल बिपिन रावत की बात करें तो उन्होंने हमारी इंडियन आर्मी के साथ ही CDS के फर्स्ट चीफ अगर हमेशा वो याद रहेंगे. Therefore, it says that he had a caliber and a heart to be CDS. General Bipin Rawat was decisive, courageous, and extremely honest. General Bipin Rawat's ultimately demise is extremely irresponsible loss for the army. Having seen him at close quarters during the Doklam crisis during my tenure in Kashmir as well as in the military service, he had the qualities to be the best leader. ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर भट्ट ने बताया कि जब उन्होंने जनरल बिपिन रावत सर के साथ काम किया था तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था. Courageous, brave, and personally honest, and to the end extremely honest with an ability to take the risk. He always were there. The amount of confidence he had take the difficult decisions both by as the Director General of Military Operation as the Sri Lanka based 15 Corps commander was because I was backed by a boss who would stand through me at all the risk and difficulties. The fact that he was picked as the first chief of CDS, the Chief of Defense Staff, was because he met all the requirements. He had a caliber, he had the vision, he had a heart to be the CDS. He believed in the things that the whole armed force are going on together. मिस्टर जनरल रावत जो हैं वो हमारे आर्मी चीफ जो है December 31, 2016 में बने थे और फिर 2020 में ही वॉज द फर्स्ट CDS जो इंडिया में को मिला था. देन वन ऑफ द पर्सनल रिकलेक्शंस डोकलाम इशू को लेके बात किया जब मिस्टर जनरल रावत ने उस टाइम पे डिसीजंस लिए थे इतने डिफ़िकल्ट चीज़ों पर. जनरल बिपिन रावत वॉज कमीशन टू बी द 5th Battalion of 11 Gokra Rifles in December 1978 from the Indian Military Academy, Dehradun, where he was awarded the Sword of Honor. I got permission the army in December 1981. And the best part is, I have known his younger brother who was my junior in the National Defense Academy. The brothers never threw weight that they were a general's son because इनकी फैमिली हिस्ट्री इफ़ यू नो पूरी ही मिलिट्री बेस्ड मतलब हमेशा से मिलिट्री में या इंडिया को सर्व किया है तो कभी भी वो चीज़ का गुरूर या एटीट्यूड उस चीज़ में नहीं रहा. आई शुड शेयर दैट व्हेन आई वाज DGMO, it was not only Doklam but even in many of the decisions at the operational level there was a clear cut decision and there was no risk avoidance. उनको ट्रिब्यूट देते हुए जनरल रावत वॉज द फर्स्ट मैन हु थिंक पर्पल इज़ बेसिकली तीनों सर्विस के बारे में तीनों ही मतलब नेवी आर्मी मिलिट्री के बारे में सोचते हुए वो चलते थे. एंड while thinking of the purple he may have stepped on some toes, but it was not the intentions for favoring one or other. It was to meet the aim of jointness which was the necessity for Indian armed forces. I have looked at him from my younger day, and so I didn't know him personally for many years. It was only professionally.
In the army, you are very few seniors, you knew them, and you will keep meeting them in the army. But I have seen him as the 5 sector commander in the Valley of Kashmir, the way he handled. He taught us many things like reaching out to the last man, reaching down to the last point, and honestly, he took it personal things, पर्सनल ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. सो मिस्टर जनरल बिपिन रावत की अगर हम बात करें, इन्होंने कभी भी लाइक हम बोल सकते हैं कि इंडियन मिलिट्री सर्विस, इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़े लीडर थे ये. एंड इन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द ईयर बीइंग द पार्ट ऑफ चीफ या CDS, उन्होंने इंडियन मिलिट्री आर्मी को डेडिकेट किया है. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे जाए तो वो है नॉड फॉर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट. केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये इस साल का न्यूज़ नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 साल से चल रहा है कि दो जगह यूपी और मध्य प्रदेश के जो 2 रिवर्स हैं उनको कनेक्ट करके एक लिंक बनाने की बात की जा रही है, जो कि पानी देगा बुंदेलखंड जैसे एरिया को. सो पहले आर्टिकल देख लेते हैं एंड देन विल स्टडी अबाउट द लिंक प्रोजेक्ट. वाटर स्टाफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी एंड MP टू benefit from the scheme. The Union Cabinet on Wednesday approved the funding and implementation of Ken-Betwa River interlinking project at the cost of 44,605 crores. 2020-21 प्राइस लेवल के हिसाब से द सेंटर वुड फंड 39,317 crores for the project, with 3629 crores as a grant and 337 crore as a loan. The project involves transferring the water from Ken River to Betwa River through a constructions of Dodhan Dam and can linking to both the places. ये प्रोजेक्ट अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली हमारे मार्च या 2020 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, बट इसमें बहुत सारे हर्डल्स आए. हर्डल एक था जो हमारा, अगर आप देखोगे पन्ना, आप लोग ने सुना होगा पन्ना टाइगर रिजर्व, दैट बिकेम एन इशू, क्योंकि मध्य प्रदेश का वो जो एरिया है दैट इज़ प्रोन टू दैट एरिया, उसको वो टाइगर रिजर्व है, उस जगह को अगर आप कंट्रोल ये करते तो इट विल बी वनरेबल फॉर दी वल्चर्स और वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती. उसके बाद दूसरा इशू हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे प्रोटेस्टर्स बोल रहे थे कि अगर आप यहाँ पर बनाओगे हम जो लिविंग एरिया है, जो ट्राइब्स रहते हैं या जो बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगा. फिर उसके बाद हमने देखा कि वाटर इशू डिवीज़न पे भी यूपी MP के बीच में थोड़ा सा इशू चल रहा था. करते 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 एटलीस्ट दे रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे अब फंडिंग दिया जा रहा है एंड जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट शायद कंप्लीट होगा. अगर जोग्राफिकली मैं बताऊँ, इफ़ यू कैन सी द मैप, ये जो ब्लू वाला एरिया है और ये बेतवा वाला पार्ट है हमारा और ये केन पाथ है, ठीक है. इसके बीच में से एक कैनल, एक डैम बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि बुंदेलखंड जैसे एरिया को और जो जहाँ पे पानी कम मिलते हैं उस जैसे एरिया को पानी प्रोवाइड करेगा. प्रॉपर वाटर डिवीजन भी हो पाएगी इस प्रोजेक्ट के वजह से, ठीक है. सो जो एक्स्ट्रा सरप्लस पानी है वो इस एरिया को प्रोवाइड किया जाएगा इसके थ्रू. तो ये एग्रीमेंट जो है इसको हम केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बोलते हैं. ये दोनों स्टेट्स के बीच में साइन हुआ था 22 मार्च को, ठीक है, वर्ल्ड वाटर्स डे के दिन. अगर ये प्रोजेक्ट की बात करें तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर है वो केन जो MP में है और बेतवा जो कि यूपी में है, वो उस जगह को पानी देंगे, बुंदेलखंड के एरियाज़ को जहाँ जो कि ज़्यादा प्रोन है, ड्रॉट प्रोन एरिया है. So the region spread across the districts of 2 states, mainly Jhansi, Banda, Lalitpur and Mahoba districts of UP, Tigamgarh, Panna and Chhattisgarh districts of MP. The project involves 77-meter tall and 2-kilometer wide Dhodhan Dam, जो नाम यहाँ पे हमने आर्टिकल में भी देखा था, धौधन डैम बनाया जाएगा इसके ऊपर, जो कि 230 किलोमीटर का एक कैनल
देगा। सो इट इज़ वन ऑफ दी, अगर केन बेतवा अगर बोले तो हमारे वन ऑफ दी 30 रिवर्स जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, उसका एक पार्ट बनता है। और ये डिले किया गया था अप्रॉक्सली कुछ मंथ, क्योंकि इन्वायरमेंट इश्यूज़ थे, पॉलिटिकल इश्यूज़ थे। अब इससे क्या होगा, अगर मैं आपको आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव में बताऊं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं अगर ये प्रोजेक्ट बन गया तो सबसे पहला एडवांटेजेस है जो ड्रॉट प्रोन एरिया है उनको प्रॉपर वाटर सप्लाई मिल पाएगा। बुंदेलखंड जैसी एरिया हमेशा से ड्रॉट प्रोन रही है तो उनको प्रॉपर वाटर सप्लाई मिल पाएगा, फैसिलिटीज़ बढ़ेंगे। उसके साथ दूसरी अगर बताओ तो फार्मर्स की बेनिफिट बहुत होंगे, क्योंकि ये चीज़ नोटिस किया गया था कि ये सब एरियाज़ में जो है ग्राउंड वाटर भी बहुत कम हो गए थे, फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहा था। अगर प्रॉपर पानी दिया जाएगा तो इट विल डायरेक्टली बेनिफिट दी फार्मर। तीसरी चीज़ जो है अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब ऐसा नहीं कि वाटर सिर्फ कंजर्व करना है, बट वही वाटर को एक्सीलरेट करके ये लोग कहीं भी था कि ऐसा मल्टीपर्पज़ डैम बनाएंगे कि उससे पानी भी पीने को मिल पाए लोगों को, एंड वाटर जनरेशन भी हो, हाइड्रो पावर। अप्रॉक्स इन्होंने बोला है कि दे विल ट्राई टू प्रोड्यूस 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी और सप्लाई वाटर। तो इनका एस्टिमेशन अगर ये डैम बन गया तो 62 लाख लोगों को पीने का पानी इस डैम की वजह से मिलेगा। सो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। अगर मैं बात करूं इश्यूज़ तो हमने पहले भी देखे, मैंने प्रोजेक्ट ये इसके बारे में बताने से पहले मैंने आपको बताया था। सबसे पहला इशू आ रहा था हमारा एनवायरनमेंट का, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व है, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उन्होंने अभी अप्रूव नहीं दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज इट वाज कमिंग इन बिटवीन दी पन्ना टाइगर रिजर्व। और उसके बाद एक क्रिटिकल इश्यूज़ हो गए थे, उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉपर फंडिंग का इशू हो रहा था कि प्रॉपर फंडिंग मेंटेनेंस कौन देगा, जो कि गवर्नमेंट ने बोला है कि दे विल प्रोवाइड दी फंडिंग। उसी के साथ केन और बेतवा की अगर मैं बात कर लूँ, मतलब एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, केन और बेतवा जो है ये दोनों ही हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। दोनों जो है यूपी में एक जगह है बंदा डिस्ट्रिक्ट करके, बंदा जो है वहाँ पर यमुना से केन मिलता है, और यूपी में और एक जगह है हमीरपुर करके, हमीरपुर, वहाँ पर बेतवा मिलता है यमुना से। ठीक है, और इनके ऊपर मतलब यही केन बेतवा के ऊपर और भी डैम्स बनाए, जैसे राजघाट हो गया, परीचा हो गया, ऐसे भी डैम्स बनाए हैं। और हमारा जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ से केन का वाटर फ्लो होता है। सॉरी। सो ये कुछ चीज़ें हैं इकोलॉजी के लिए या फिर एनवायरनमेंटली, आपको उसको याद रखना है। कौन सा रिवर पन्ना से पास होता है, किस चीज़ की ट्रिब्यूटरी है, कुछ प्रोजेक्ट्स बने हैं कि नहीं इनके पीछे, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या एडवांटेजेस है, क्या इश्यूज आए थे अभी। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द केन बेतवा वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल जाते हैं। पार्लियामेंट ने हमारा एक बिल पास किया है जिसको बोलते हैं आर्ट एंड सरोगेसी पास। आर्टिकल के थ्रू अगर हम बात करें तो जो आर्ट है, ठीक है, जिसके बारे में बात किया है, जो सरोगेसी भी जिसके बारे में बात किया है, उसका बिल जो है अभी रिसेंटली पास किया। आर्ट का फुल फॉर्म इज़ असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सरोगेसी। सो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली जहाँ पर अगर इनफर्टिलिटी है आपको तो यू कैन गो देयर क्लिनिक्स एंड प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे यू कैन गेट द फुल फैसिलिटीज़। जो IVF का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, लोगों जो इनफर्टिलिटी फेस करते हैं उनको फर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव में कैसे हम मदद कर सकते हैं, उस पर ये बिल पास किया गया है। पहले आर्टिकल देख लेते हैं, देन आई लेट यू नो अबाउट मोर अबाउट आर्ट। सो द असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 was passed by Lok Sabha on December 1 and it was passed voice vote in the upper house. Sloganeering by the opposition member who are protesting against the suspension of 12 members of the house। ये कुछ दिन पहले ही था कि जो अपोजिशन मेंबर्स है उसके 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया था पार्लियामेंट से। उसके ऊपर भी उसको भी इशू बनाते हुए दे वर ट्राइंग कि ये बिल पास ना हो, बट बिल पास हो गया। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी ने, उन्होंने बोला है कि ये वन ऑफ द रिकमेंडेशन था जो बहुत जनों से सुना जा रहा था। ये बिल जो है हमारा सरोगेसी के लेकर है कि जो स्टेट सरोगेसी बोर्ड है उन्होंने ऐसे बोर्ड्स अपॉइंट करेंगे, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ और रेगुलेटिंग बोर्ड बनाएंगे जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के सारे क्लिनिक्स पे ध्यान देगा और उस पर ध्यान देगा कि सबके पास ये बॉडी मिल पाए।
So the art bill is for the regulation and supervision of the assistant reproductive technology for clinics एंड बैंक जो होते हैं. अभी अगर बिल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, बिल क्या है, किस चीज़ की वजह से लाया था. प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो नया बिल पास हुआ है जीएस पेपर 2 के हिसाब से, हेल्थ हो गया, गवर्नमेंट एंड और ये सब चीज़ को रिलेटेड या इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन को लेकर ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है. सो सबसे पहले ये लोकसभा में लाया था 2021 के बिल बन के. ठीक है. अब ये जो बिल है इट इज़ नॉट, मतलब इट एक्सक्लूड्स द LGBT कम्युनिटी. ठीक है. उसके बाद एक सेकेंड, LGBTQ कम्युनिटी, देन जो सिंगल मैन है और उसके साथ ही जो लिव इन कपल्स हैं उनको एक्सक्लूड करता है ये बिल. उनके लिए ये बिल नहीं है या उनके लिए ये फैसिलिटी नहीं है. अब इस बिल के बारे में बात करते हैं. ये बिल जो है फर्स्ट टाइम जो है 2008 में रेगुलेट किया गया था, जो कि सजेशन किया गया था ICMR के तरफ से. हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये सजेशन दिया था. फर्स्ट ड्राफ्ट जो है उन्होंने 2018 में दिया था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, जिसको लोकसभा में फर्स्ट टाइम जो डिस्कशन के लिए लाया गया था 2020 में ही लाया गया था. बट देन लोकसभा या हाउस ने बोला कि इसको आप स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र कर दो फिलहाल के लिए. ठीक है. अब ये बिल के अंदर क्या होगा, इस बिल के अंदर दो ऐसी बॉडीज़ बनाए जाएंगे, नेशनल रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी. ऐसी दो बॉडी होंगे, नेशनल रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशनल अथॉरिटी, जो कि मतलब उस एरिया में जितने भी क्लिनिक्स हैं, जितने भी मेडिकली प्रोफेशनल सर्विंग फील्ड्स हैं, वहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ उस सभी जगह पर अगर वो प्रोफेशनल बिल्डिंग है, अगर वो प्रोफेशनल क्लिनिक है, तो वो आपको आर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए. एक प्रॉपर क्लिनिक का डेटाबेस रखा जाएगा कि कौन सा क्लिनिक में मतलब क्या डेटा है, कितने लोग आते हैं, क्या क्या चीज़ वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो रजिस्टर्ड होगा उनके वर्क, और वो जो रजिस्ट्रेशन है इट विल बी वैलिड फॉर 5 years. ठीक है. अब आर्ट सर्विस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ये तो अबाउट द बिल था. आर्ट सर्विस के अगर बारे में बात करूँ तो इट विल प्रोवाइड यू. आर्ट सर्विस का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव, मतलब आपको अगर रिप्रोडक्शन में या फर्टिलिटी में इशू हो रहा है तो दे विल असेस्ट यू कि आपका मतलब यू कैन रिप्रोड्यूस और यू एटलीस्ट यू कैन मतलब फर्टिलिटी की जो इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करने में मदद करता है. सो इट सीक्स टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्लिनिक. और ऐसे बैंक बनाए जाएंगे जो कि मिसयूज़ हो गया, अडॉप्ट सेफ हो गया या एथिकल प्रैक्टिसेस को लेकर ध्यान में रखेगा, जिसके अंदर बोले कि दे विल मेक दिस अ नेशनल बोर्ड, जो कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर लैब देगा, प्रॉपर डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स दिया जाएगा, एक्सपर्ट मैन पावर दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगे अगर ये बॉडी बना तो. ठीक है. इसमें पनिशमेंट्स भी उन्होंने रखे हैं. पनिशमेंट ऐसे हैं कि अगर कोई बच्चे की जेंडर जानने की कोशिश करता है, सेक्स सिलेक्शन हो गया, सेल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रोज हो गया, गैमेट्स हो गया, या ऐसी कुछ एजेंसी रैकेट्स करता है, अगर इट इज़ फॉर देयर फर्स्ट टाइम, अगर पहली बार उनके पकड़े गए तो 5 to 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर कंटिन्यूसली देखा गया कि 2-3 बार ये ऑर्गेनाइजेशन या ये इंसान पकड़ा गया है तो उसको जो है जेल होगी उस 8 से 12 साल के बीच में, और उसको 10 से 20 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर कोई क्लिनिक आया है इसके अंदर, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्लिनिक देखा गया है कि वो सेक्स सिलेक्टिव या ये सब चीज़ों में काम कर रहा है, इलीगल वर्क कर रहा है, सो उसको वो तो बंद हो जाएगा. सबसे पहले 10 से अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 साल का उनको जेल होगा, उसके साथ 10 से 25 लाख का जुर्माना उनको भरना पड़ेगा. अब क्वेश्चन ये आप आता है या फिर ये आप इंक्लूड कर सकते हो कि इसका नीड क्या है, आर्ट लाने का नीड क्या है. ठीक है. नीड इसके लिए है बिकॉज आज के टाइम पे ऐसी कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है जो कि ये सब जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर डिसीजन ले पाए. ठीक है. उसके ऊपर मतलब लोगों को मदद कर पाए. सो कहीं ना कहीं टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, टू प्रोटेक्ट दैट ओवरी, टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम फेसिंग द इलीगल या अनएथिकल प्रैक्टिसेस, वो सब चीज़ से बचाने के लिए दिस बॉडी इज़ इन नीड ऑफ आर. ठीक है. और दिस बिल्स अलाउ फॉर द मैरिड हेट्रोसेक्सुअल पीपल, वुमेन अबाउट द एज ऑफ मैरिज. ठीक है. वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. इसमें जो है अगर आपके जो लिव इन कपल्स हैं वो अलाउड नहीं है. जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए नहीं बना है, ना ही सिंगल्स मैन के लिए बना है. वो लोग इस आर्ट फैसिलिटी का मतलब यूज़ नहीं कर सकते.
ओके, कहीं ना कहीं ये जो है ये जो बिल है, ऐसा बोला जाता है कि ये बिल हमारा आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर कोई लॉ आया है प्रोटेक्शन के लिए तो वो सबके लिए होना चाहिए, बट यहाँ पर यू आर एक्सक्लूडिंग देम। तो क्रिटिसिज्म में यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट कि इट वॉयलेट्स द आर्टिकल 14। कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ का क्रिटिसिज्म आप इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज़ द कॉस्ट। इसका जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो एक्चुअली अगर इसकी अगर प्रॉपर पेमेंट देखेंगे तो ये पुअर लोग उसको एवेल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट चार्ज वेरी हाई। ठीक है, सो यही कुछ क्रिटिसिज्म है। आर्टिकल 14 हो गया, कॉस्ट ऑफ दैट, फिर सेरोगेसी बिल, ठीक है, जो कि ऐसा देखा गया कि मल्टीपल मतलब क्लिनिक्स जो हैं सेरोगेसी को चीज़ को लेकर प्रोवाइड नहीं करते। सो ये सब कुछ क्रिटिसिज्म है उस चीज़ को लेकर, जो कि आप क्रिटिसिज्म पार्ट में लिख सकते हो। एंड दैट वाज अबाउट द बिल कि आर्ट क्या है, सेरोगेसी क्या है, क्या फ़ायदा होगा इसमें, क्या फ़ायदा नहीं होगा। सो आई होप सो आज के आर्टिकल्स आपको क्लियरली समझे होंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।